welcome you all in your 10th chapter, 10th lecture, and I am going to continue your third lesson, sorry. So you are thinking that ma'am this is too lengthy, no? Yes, actually this is very nice lesson, that's why I thought that I have to explain it very nicely. Because this is your life lesson, I can say. Because you can learn so many things from this lesson. Most important moral, and what is the moral means very nice moral is besides means in this lesson, that is why I have narrated this in detail. So let's see, as I have started the chapter, and you have seen that Kezia was a little girl. She was afraid of her father a lot, and whenever her grandma told her that her father's birthday was in next week, so you have to make some surprise for him. So that is why she made, and her grandma has given yellow silk cloth to her, and she wanted to make a pin cushion. So she stitched all three sides very nicely, and she wanted to get the feelings inside the cushion. That is why she was searching through the things from the home, but she hasn't get all the things, and that is why she found the bunch of papers put on the table in her mom's room. She had just taken it and torn all the papers and filled them inside the cushion. So whenever she filled all that thing, and she stitched the fourth side, and she completed the surprise that she wanted to do her father on his birthday. So what happened? Actually, whichever the paper she has taken, that papers are very important. That the papers of her father, and the speech is written over there, and because of that the papers was not getting to her father, and he was angry. That is why he was searching for the papers, and whenever her father came to know that whatever the act or whatever the work that is done, which the paper were not getting, that is done by the Kezia, she was very angry, and he scolded Kezia and went in her room and beaten 2 scale over her hands. So at that moment her grandma came there. She just take the Kezia with her and scolded her son, that is Kezia's father. Up to here we have learned the story. So whenever the Kezia's father beaten her, and her grandma just kept we can say that her grandma was just wrapped in a shawl, and her father was asking to her that why you have done this, why you have torn the papers. So she answered that because father, your birthday will be there in the next week, so I have made a surprise for you, and whatever I have done, I made the surprise for your birthday. Means so she started stuttered. Okay, so let's move ahead. What is the given thing? Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed means she was saying in sadness, as she was very disappointed at that moment, and she was saying that why God has made the fathers. कि भगवान ने ये फादर नाम की चीज क्यों बनाई? That you always used to tell that why the God has made the school, no? So same thing. The Kezia was talking with herself. She is saying that why God has made fathers. फादर को बनाना ही नहीं चाहिए. उसके माइंड में पहले ही डर था, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला, और डर बैठ गया. And here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, babe. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen to me. उसकी दादी उसको कन्विंस कर रही है. She is saying that उसकी दादी उसको बोल रही है कि बेटा ऐसे सब नहीं करना है, अपना नोज जो है वो हैंकी से क्लीन कर लो. फिर पापा को मैं समझाऊंगी कि तूने जो भी किया वो अच्छे के लिए किया है, बट टुडे राइट तो योर फादर इज नॉट इन दैट पोजीशन टू अंडरस्टैंड बेटर. पापा को मैं अभी नहीं बता सकती बिकॉज ही इज ना, ही इज ऑल्सो अपसेट. वो भी अपसेट है क्योंकि उनके जो कोर्ट अथॉरिटी के पेपर्स है स्पीच देना है उनको, वही नहीं मिल रहे, तो कोई भी अपसेट तो हो गई. तो उसकी दादी उसको कन्विंस कर रही थी, बेटा मैं कल सुबह बात करती हूँ, अभी तू सब कुछ भूल जा और मस्त सो जा. देन बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट.
Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. फिर क्या हुआ देखो, next time onwards, whenever she used to see her father, she just kept that hands behind. उसके हाथ को दोनों डर के मारे पीछे कर लेती थी और इतना डर उसके आंखों में आता था कि उसकी जो चीक्स है वो रेड हो जाते। यानी देखो उसको कितना डर था। जैसे ही मीन्स वो अपने ऐसा बोलते हैं कि बच्चे भूल जाते हैं, बट नहीं, बच्चे नहीं भूलते। उनको हमेशा याद रहता है कि मेरे पापा ने मुझे ये मारा था, तो वो नेक्स्ट टाइम से डरने लगते हैं कि अरे ये क्या है, जिसकी वजह से whenever from the next time onwards she used to see her father, she just keep her hands behind, okay, जिसकी वजह से उसके पापा को उसका हाथ नहीं जाए। हैंड्स तो उसके पापा भूल गए वो चीज़ को, उसके माइंड में ये चीज़, और वो उसके रेड चीक्स जो है वो रेड हो जाते थे डर के मारे। देन the McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. फिर उनके पड़ोसी थे जिनका सरनेम था मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट नहीं समझना हो, तो मैकडोनल्ड उसके पड़ोसी थे, उनके 5 बच्चे थे। वो एक उसके घर में से बैल्कनी में से या उसके जो वेरेंडा हो उसमें से देख रही थी, तो उसको पता चला कि वो जो मैकडोनल्ड है वो अपने बच्चों के साथ टैग है, उन लोग ऐसे वो पकड़ा पकड़ी खेलते तो वो गेम शाम को खेल रहे हैं, वो देख रही थी यहाँ से। फिर उसके माइंड में क्या विचार आता है, द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round। अभी उसने देखा उनकी छोटी बच्ची थी जिसका नाम था माउ, वो उसके शोल्डर पे थी, यानी यहाँ कंधे पे। 2 लड़कियाँ जो थी उन्होंने यहाँ पे ऐसे कोट को पकड़ के वो गोल गोल घूम रही थी। एंड round the floor beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. और 2 बच्चे बॉयज से उन्होंने पानी की जो पाइप होती है होज उसको छोड़ा और उनके ऊपर पानी डाल रहे थे। वो जो बच्चे थे वो अपने फादर के ऊपर और वो बच्चियों के ऊपर, और वो लोग खुशी से हंस रहे थे। ये देख के केजिया बहुत अपसेट हो गई। उसको ऐसा लगा कि देखो ये मैकडोनल्ड जो अंकल है वो कितने अच्छी तरह से अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और मैं यहाँ हूँ देखो चुपचाप अकेले घर में, कोई मेरी ओर देखता नहीं, मेरे पापा तो मुझसे बात भी नहीं करते। ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग उसके माइंड में आ जाती। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। फिर उसने उसके माइंड में अभी दूसरा डिसीजन ले लिया। उसको ऐसा लगा कि फादर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ फादर्स बहुत अच्छे होते हैं, प्लेफुल, कुछ फादर्स मेरे फादर की तरह होते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम बात करना उनको आता नहीं है, लाड प्यार करना उनको आता नहीं है। ऐसा उसने अपने माइंड में डिसीजन ले लिया। सो सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ, एक दिन उसकी मॉम जो थी वो बीमार हो गए थोड़े से, इसलिए दादी और मॉम जो है वो हॉस्पिटल में गई। अभी घर पे कौन था, अकेला केजिया। एंड द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। और वो जो छोटी बच्ची थी केजिया, उनकी कुक थी एलिस, उसके साथ उसको छोड़ के वो लोग चले गए। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन तक तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पूरा दिन उसका निकल गया अच्छी तरह से। एंड बट व्हाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। पर एलिस जब उसको सुलाने के लिए लेके जा रही थी तब वो डरने लगी, तब उसके माइंड में डर आया। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है कि ये मैकडोनल्ड है, एक बच्चा उनका कंधे पे है और 2 लड़की आसपास खेल रही है, बच्चे वहाँ से पानी डाल रहे हैं। फेंस में से वो देख रही है, उसके घर का जो फेंस है ये केजिया है, उसके घर के फेंस में से वो पड़ोस में देख रही है। तो मैकडोनल्ड जो है वो किस तरह से अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं उसको दिख रहे हैं। तो ये देख के किसी का भी दिल जलेगा कि नहीं जलेगा, एग्जैक्टली। तो सेम वैसा ही हुआ। अभी देखो वो इंसिडेंस ऐसा हुआ कि उसकी मॉम बीमार हो गई, जिसकी वजह से वो उसकी मॉम और ग्रैंडमदर जो हॉस्पिटल में चले गए और एलिस जो उनकी कुक थी उसके बाद केजिया को छोड़ के वो लोग चले गए। पूरा दिन तो अच्छी तरह से निकल गए। जैसे ही शाम होने लगी उसको जो एलिस थी उसने उसको बेड टाइम तो नहीं बोल सकते, बट जैसे अपने 3-4 बजे सोते हैं उस टाइम होगा, उस वक्त केजिया को बेड पे सोने के लिए लेके जा रही थी। तब उसके माइंड में डर बैठ गया। क्यों? क्योंकि अभी पता था एलिस तो चली जाएगी, फिर मैं अकेले घर में, अभी फादर भी आएंगे, अब क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क उसके सामने आ गया। देन what I will do if I have a nightmare, she asked him. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed
I can't stay in the dark. It all gets whispering. वो बोलती कि अभी मैं क्या करूँगी, मुझे तो डरावने सपने आते हैं, नाइटमेयर्स, बैड ड्रीम्स, उसको हम लोग नाइटमेयर्स बोलेंगे। वो बोलते कि मैं अकेले नहीं रह सकती, अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं, और मुझे हमेशा ये नाइटमेयर्स आते हैं, बैड ड्रीम्स आर कमिंग टू मी। और जब मुझे ऐसे खराब सपने आते हैं, बुरे सपने, तो दादी मुझे अपने बेड पे लेके जाती है और मैं उनके साथ सोती हूँ। और अब मैं कहाँ सो, क्योंकि दादी भी घर पे नहीं है, मॉम भी घर पे नहीं है, आप भी चले जाओगे अपने रूम में काम करने के लिए, तो मैं अकेले मेरे रूम में नहीं सो सकती, क्योंकि आई हैव नाइटमेयर्स, मुझे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। देन यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। फिर वो बोल रही है, देखो कि बेटा डरना नहीं है, आराम से सो जाओ। फिर उसने उसके सॉक्स निकाल दिए और बोल रही है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं, अभी तुम्हारे पापा जो है वो तुझे उठा देंगे। अभी पापा का नाम लिया तो फिर तो गई हो तुम, क्योंकि उसको पहले से ही इतना डर था। फिर क्या हुआ देखो, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल। उसको हमेशा द सेम नाइटमेयर शी इज हैविंग एवरी नाइट, एक ही सपना उसको बार बार आता था। बचर, बचर इसको बोलते हैं जो मारता है ना एनिमल्स को, ओके, उसको बचर बोलते हैं। तो एक बचर है, उसके हाथ में नाइफ और रस्सी है, और वो जो बचर है वो उसके पास में आ रहा है और हंस रहा है। बस उसको वही सपना रोज आता था, रोज। आज भी वही हुआ, वो तो सो रही थी और उसको वो सपना आया कि एक बचर है विथ नाइफ एंड रोप एंड हू केम नियरर टू हर एंड गेट स्माइल, और वो हंस रहा है। उसको देख के तो उसको ज्यादा लगने लगा। एंड ग्रैंडमा शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। वो चिल्लाने लगी नींद में, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, मीन्स दादी दादी, और कांपने लगी डर की वजह से। तब उसने देखा कि उसके पापा उसके बाजू में बैठे हुए हैं, उनके अपने कैंडल है, क्योंकि रात का समय होगा या शाम का समय होगा, वो नहीं चाहते होंगे कि उनकी बेटी नींद में से उठे, इसलिए उन्होंने लाइट भी नहीं लगी। एंड वो देख रहे थे, उसके बाजू में बैठे हुए थे। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उन्होंने बोला कि क्या हुआ बेटा, व्हाट हैपन, क्यों ऐसे डर रहे हो आप। देन ओह अ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। वो नींद में ही थी, उसको ऐसा लग रहा था, अरे बाप रे अभी मैं क्या करूँ, ये बचर, उसके हाथ में नाइफ, ग्रैंडमा आप कहाँ हो, मुझे आपके पास आना है, ऐसे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। एंड ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। उन्होंने कैंडल को साइड में रख दिया या बुझा दिया, उन्होंने अपनी बच्ची को हाथ में ले लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको बड़े बेडरूम के अंदर उसको उठा के लेके गए। एंड अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर, पेपर के ऊपर न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, क्योंकि हर फादर यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर डेली, because in the morning her father is not getting the time, that is why whenever he returning from the job he used to read the newspaper, that is why the newspaper was kept over the bed. So her father just moved it out and kept the paper aside, पेपर को साइड में रख दिया। and he put away the paper, then carefully tucked up the child, और धीरे से easier को बेड के ऊपर रखा। then he lay down beside her half asleep, still with the butcher smile all about her it seemed। उन्होंने, वो भी उसके बाजू में सो गए, उसको ऐसे वो थपथपा रहे थे, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सोने का वो भी कोशिश कर रहे थे। और उसको क्या दिख रहा था कि जो बचर का स्माइल है वो उसके पास में ही आ रहा है, उसको तो वही दिख रहा था, और वो जो है वो अपने पापा को ऐसे जोर से पकड़ के सो जाती है। एंड स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, शर्ट को पक्का पकड़ के रखा है, उसके आर्म यानी यहाँ पे उसने अपना सिर जो है वो रख दिया है, और एकदम डरी हुई है, क्योंकि उसको पता है कि अभी वो बच्चा, उसको सब, वो नींद में थी ना, उसको पता है उसके पापा ने लिया है, बट वो अपने पापा से इतना डरती थी कि उसको ज़्यादा डर बैठ गया, जिसकी वजह से जैसे ही उसके पापा ने उसको उठा के अपने बेडरूम में लेके गए और वो सो गई, उसको धीरे से उन्होंने रखा, तो अपने पापा का शर्ट टाइट पकड़ा हुआ है, आर्म से यहाँ पे सर रखा हुआ है, और डर के ऐसे आंखें बंद करके वो सो रही है। देन क्या होता है देखो, देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। फिर बाद में उसको डर नहीं लगा, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा हो गया तो उसको ऐसा कि अभी मुझे अंधेरे से डर नहीं लग रहा है, ऐसा उसको फील हुआ। Here, rub your feet against my legs and get then warm, said father। पापा ने उसको बोला कि बेटा तेरे जो पैर है वो मेरे पैर के ऊपर घिस, क्योंकि ये देखो एक्चुअली दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्रिटेन और
अमेरिका अमेरिका तो नहीं बोलेंगे, वहाँ की स्टोरी है जिसकी वजह से वो कोल्ड वॉर होता है। तो उसके पापा ने उसे बोला कि बेटा तुम्हारे पैरों और मेरे पैरों के ऊपर घिसो, जिसकी वजह से तुझे वार्म मिलेगी और तुझे अच्छी नींद आएगी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो पूरे दिन में थके होते थे इसलिए बच्ची सोने से पहले वो सो गए। देखो ये बात सोचने जैसी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को एक चीज़ बताई थी याद है कि आजकल के समय की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे जो है वो अपने पापा से संडे को ही मिलते हैं, और हार्डली कभी उनको घर पे छुट्टी ले ली तो ही बच्चे अपने पापा को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि व्हेनेवर द किड्स आर गेट अप, उससे पहले फादर चले जाते हैं, और जब वो आते हैं उससे पहले बच्चे सो जाते हैं, यानी उनका मिलना होता ही नहीं। उनका जो फादर के साथ कांटेक्ट होता है वो बहुत अटैचमेंट, वी कैन से नॉट कांटेक्ट, जो भी अटैचमेंट होता है वो इतना नहीं होता है। उनको कुछ भी बात बोलनी हो तो उनका मीडिएटर होता है मॉम, वो मम्मी को बात बोलते हैं, वो मम्मी जो है वो बात फादर तक पहुंचाती है। जब वहाँ से यस आता है तो ही तुमको जो चीज़ लेनी है जो भी चाहिए वो मिलता है, यानी हमारा मीडियम होता है ब्रिज, वी कैन से, है ना, मम्मी होती है, हम लोग उसको बोलते हैं, वो पापा को बोलती है, इस तरह से हमारा काम चलता रहता है। तो हमें पापा की इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मम्मी वो सारा काम करती रहती है, उनको पता है कि मम्मी है ये सारा काम कर रही है। इसलिए यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, उसके जो फादर थे, जैसे कि एजी अकबर पर क्या लगता था, शी लाइक्ड मैकडोनल्ड्स मच, उसको मैकडोनल्ड बहुत अच्छे लगे क्योंकि उसको ऐसा लगे कि देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, फादर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। क्योंकि मैकडोनल्ड जो थे वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उनके बच्चे उनके ऊपर पानी उड़ा रहे तो भी उनको गुस्सा नहीं आता था। अगर ये सेम चीज़ उसको मन में डर था, एक्चुअली ऐसा होता नहीं, उसका मन में क्या डर था कि अगर ये सेम चीज़ मैं मेरे पापा के साथ करूँगी तो मेरे पापा तो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएंगे, मुझे मार भी सकते हैं, है ना। क्योंकि उसके माइंड में क्या था कि सिंपल से पेपर मैंने फाड़े तो भी मेरे पापा ने मुझे स्केल से मारा, तो अगर मैं पानी उड़ाने जाऊँ तो पता नहीं मेरा तो फिर क्या होगा। ये तो उसकी सोच थी, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। इसकी वजह से यहाँ पे देखो वो बच्ची जो है उसके माइंड में से अभी डर निकल गया, उसको ऐसा लगने लगा कि अभी डार्क से मुझे, अंधेरे से मुझे डर नहीं लगता है। और उसके पापा जो थोड़े थोड़े नींद में थे, उनको भी नींद आ रही होगी, पूरे दिन के थके होते थे, वो सो गए और बच्चे जाग गए। देन अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग। फिर उसके माइंड में फनी विचार है, जिसको देख के उसको खुद को हंसी आई कि मैं मेरे पापा को जितना जायंट समझती थी, मेरे पापा तो वैसे कुछ भी नहीं है, इज नॉट सो बिग, इज जस्ट पुअर फादर, कि वो सिर्फ सिंपल ही मेरे पापा है और वो इतने बड़े नहीं, वो इतने बड़े नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंडमदर बट इट वॉज नाइस हार्डनेस। उसके पापा की बॉडी, क्योंकि वो हमेशा किसके साथ सोती थी, ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर की बॉडी जो थी वो सॉफ्ट थी, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा का जो टच है वो थोड़ा हार्ड है, पर इट्स अ नाइस टच, कि मेरे पापा जो है थोड़ा हार्ड है, दादी की तरह तो नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उसको टच में डिफरेंस आ रहा था। क्योंकि क्यों यहाँ पे देखो व्हाई शी इज फीलिंग दैट मच ऑफ डिफरेंस, क्योंकि शी यूज्ड टू स्लीप विद हर ग्रैंडमा ओनली, शी हैज बीन नेवर स्लेप्ट विद हर पेरेंट्स। जब तक उसको समझ में जब से आया होगा उसे याद नहीं कि कभी वो अपने पेरेंट्स के साथ सोई, इसलिए उसको ये प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, शी जस्ट गॉट द टच डिफरेंट, उसको जो अपने पापा का जो टच है, फीलिंग है, वो अलग आ रही थी। क्योंकि वो जब से उसको समझ में आने लगा था तब से वो अपनी दादी के साथ ही सोती थी, तो दादी जो थी वो सॉफ्ट थी एज कम्पेयर टू हर फादर, दैट इज व्हाट शी इज सेइंग। मैं ये रीड करूंगी, देखो, टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, and with no one to look after him, he was harder than grandmother. क्योंकि उसने ऐसा क्यों बोला, देखो, why she felt the touch of her father hard, because what she is thinking, वो ऐसे बोल रही है कि मेरी पापा की केयर लेने वाला तो कोई है ही नहीं, उनकी कौन केयर लेगा, उनको कौन थपथपाएगा, उनको कौन स्टोरियाँ सुनाएगा, क्योंकि वो अपने एज के अकॉर्डिंग सोच रही थी। यहाँ पे जो भी वो सोच रही थी अपने एज के अकॉर्डिंग सोच रही थी, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा को कौन केयर लेगा, उनकी कोई केयर लेने वाला है नहीं, इसलिए वो इतने हार्ड हो रहे हैं। ऐसा उसके माइंड में उनके पापा के लिए सिंपैथी आती है। Kezia has just got the sympathy about the father. She is thinking that her father is not caring to by all. That is why he is hard. इसलिए उसके माइंड में ऐसा लगे, इसलिए वो इतने हार्ड है, कड़क है उनकी बॉडी। So
इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, पर उसको वो हार्डनेस जो है उससे कोई मैटर नहीं, डजंट मैटर, वो बोल रहे कि इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, वो हार्डनेस भी उसको अच्छा लगा। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। वो बोल रही है कि शायद मेरे फादर जो है, मेरे पापा जो है, वो बहुत थक जाते हैं, उनको वर्कलोड भी बहुत होता है, इस शेड्यूल इज वेरी हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से उसके पापा शायद मिस्टर मैकडोनल्ड से ज़्यादा काम करते हैं, उनसे एज कम्पेयर टू मिस्टर मैकडोनल्ड ज़्यादा थकावट उनको आती है और उसकी वजह से वो बहुत ही थक जाते हैं। ओके, then she had torn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. उसने क्या किया देखो, she had torn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. What's the matter? asked her father another day. फिर उसको एक सपना आया फिर से, कि उसे वो फिर से पेपर काट दिए, फिर उसके पापा पूछते हैं क्या मैटर है, यानी वो सपने में देख रही थी, फिर से उसको ऐसा सपना आया। Then oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What's a big heart you have got, father dear? पर उसमें देखो इस बार उसने जो देखा वो अलग था। हर बार वो क्या देखती थी कि उसके पापा उसको डांट रहे हैं, है ना, इसकी वजह से फिर वो क्या होगा पता नहीं, बिग वन जायंट है, स्पेशली हिज माउथ, क्योंकि वो जब खुलता था उसके हैंड बहुत बड़े बड़े थे, ऐसा उसने इमेजिनेशन एक फिगर बना के रखी थी अपने पापा के अपने माइंड में। पर अभी देखो उसके पापा को वो बता रही है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तब उसे फील हुआ कि जब उसके पापा ने उसको सिंपैथी दी कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तब उसे ऐसा लगा कि हिज फादर हैज अ बिग हार्ट, उसके पापा का दिल बहुत बड़ा है और पता नहीं उनको क्या क्या वो दिल में रखना पड़ता है, इसकी वजह से वो जो हार्डनेस है, उनका जो स्ट्रिक्टनेस है ऑटोमेटिकली आ जाता है। तब उसने इन द रियल वे शी अंडरस्टूड हर फादर वेरी नाइसली, तब उसने एक सही तरीके से अपने पापा को पहचाना और तब उसको ऐसा लगा कि नहीं सच में मेरे पापा जैसे कोई दूसरे पापा है ही नहीं। तुम लोगों को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पापा की तरह दुनिया में किसी दूसरे के पापा है ही नहीं। एवरी चाइल्ड हैज द सेम साइकोलॉजी इन दिस वर्ल्ड, वो इंडिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, कोई भी हो, हर एक चाइल्ड की ये साइकोलॉजी होती है कि उसके पापा के जैसा दूसरा कोई फादर है ही नहीं। यही साइकोलॉजी मीन्स यहाँ पे देखो, जब वो उसके पापा के पास गई, जब वो उसके पापा को समझ पाई, उसके पापा तो वैसे ही थे, देखो अभी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी यहाँ पे कि उसके पापा ने भी उसको समझा, नो, उसके पापा तो उसको समझ ही रहे थे, वो तो उनको तो अपनी बच्ची प्यारी ही थी। बट वॉट एवर द साइकोलॉजी केजिया इज हैविंग अबाउट हर फादर इन हर माइंड, उसके माइंड में उसके पापा को लेके जो भी साइकोलॉजी है वो समझ गई कि मेरे पापा तो बहुत अच्छे इंसान है, मेरे पापा की तरह कोई दूसरे पापा है ही नहीं। जब उसकी ये सोच बदली, तब जाके वो जो बच्ची है वो केजिया अपने पापा के साथ अटैच हो गई। यानी कि देखो स्टूडेंट्स, हर बार पापा की मिस्टेक नहीं होती है, अपनी भी मिस्टेक होती है, हमको भी कभी कभी उनको समझने में हम लोग गलती कर देते हैं। तो जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बोला था, मैंने एक पोएम 11th या 12th में फादर टू सन, दिस इज द पोएम शोज अबाउट द जनरेशन गैप। फादर की एज होती है 40, बच्चे की एज होती है 10। बच्चा अलग तरीके से सोचता है, पापा जो है वो अलग तरीके से सोचते हैं, तो पापा की सोच और ये मिलती नहीं है। पापा को भी वही बोलना होता है जो चाइल्ड को बोलना है, पर वो अलग तरीके से बोल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सोच न मिलने की वजह से क्वारल्स जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलते ही रहते हैं। सेम ईयर वही कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे था। आई होप तुम लोगों को ये चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हर बार हमारे भी पेरेंट्स गलत होते नहीं हैं, हमारी भी कभी कभी गलती होती है। तो तुम लोग ये चैप्टर से मोरल ले लो। क्या मोरल लेना है कि तुम्हारे मम्मी पापा जब तुम लोगों को डांटते हैं तो उसको नेगेटिवली लेना नहीं है, तुम्हारी मिस्टेक उनको पूछनी है। अगर तुमको समझ में नहीं आती है मिस्टेक तो उनको पूछो, मम्मी मेरी क्या मिस्टेक हुई। अगर तुम लोग अपने पेरेंट्स से सिंपल कम्युनिकेशन रखोगे तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे झगड़े होते हैं, वो नहीं होते, वो डिस्प्यूट्स चले जाएंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म करती हूँ। जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ, यू नो योर वर्क स्टार्ट्स, तुम्हारा काम शुरू होगा। यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है वो तुम लोगों को लिखने हैं। यहाँ पे अभी मैं मेरा ये जो लेक्चर एंड करती हूँ। आई होप तुम लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। विद दिस आई एम एंडिंग माई लेक्चर एंड योर होमवर्क इज राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, टिल देन बाय।